हेलो स्टूडेंट्स, बेटा इंटीग्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल 3 ਮੈਥਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੋ ਫਰਸਟ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਬਾय ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬਾय ਪਾਰਸ਼ਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬਾय ਪਾਰਟਸ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਓਵਰਆਲ ਸਾਰੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। फर्स्ट मैथड से शुरू करने जा रहे हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मैथड ਜਿਹੜਾ ਕਿ एनसीईआरटी 7.2 एक्सरसाइज सारी ਦੇ ਉੱਪਰ बेस्ड है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ एनसीईआरटी फर्स्ट इज इंटीग्रल ऑफ 2x over 1 plus x square। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ आ रहा है कि 1 plus x square ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ 2x। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੁੱਟ 1 plus x square is equal to, let us take t ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ, then differentiate with respect to x। 1 ਦਾ 0, x square is 2x और राइट साइड t ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿव dt by dx, then cross multiply 2x dx is equal to dt। ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਣੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ 2x dx। ਸੋ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ therefore ਇੰਟੀਗਰਲ becomes, ਦੇਖੋ 2x dx ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ dt ਬਣ ਗਿਆ ਓਵਰ 1 x ਕੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ t। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਲੀਅਰ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਆਫ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ t। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 over x ਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ log mod x, now 1 over t ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ log mod t plus c। t ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿਓ, what is t 1 plus x square। ਸੋ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਫਾਈਨਲ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 2x ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ 2 ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਫਿਰ x dx ਬਣ ਜਾਣਾ dt by 2, ਨੀਚੇ 2 ਆਣਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਸ 1 by 2 1 by 2 ਇਹ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ, and the next question number 8 is x into under root of 1 plus 2x square। देखो अगर ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਝ ਔਡ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। पुट 1 plus 2x square is equal to t, derivative differentiate with respect to x, 4x is equal to dt by dx। ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4x ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿਰਫ x dx। So 4 ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰੋ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ, dx ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ, x dx is equal to dt by 4। So what is the integral? Integral under root ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ that is t, under root t into x dx ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ dt by 4। 1 by 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ रूट मींस हाफ पावर। क्वेश्चन आ बन गया जी। ठीक है, t रेज़ पर 1 by 2 का इंटीग्रल, t raised by 1 by 2 plus 1, that is 3 by 2 divided by 3 by 2 plus c। So this is 1 by 6, t the value replace करो, 1 plus 2x square raised to power 3 by 2 plus c। And the next question number 12 is x cube minus 1 raised to 1 by 3 into x raised to 5 dx। देखो पुट इनू करना कि इनू करना है, ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਚੁਰਲ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਔਖੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ x³ - 1 ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਆਏਗਾ 3x²। ਬਾਹਰ ਤੇ 5 ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਪਾਵਰ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ x³ - 1 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 1/3 ਇਨਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 2 ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, x³ अलग कर दो, x² अलग कर दो। ठीक है, हुन पुट करांगे। नाउ पुट x³ - 1 is equal to t, so its derivative is 3x² is equal to
dt by dx। 3x स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, साढ़े को सिर्फ x स्क्वायर है, तो 3 ਨੂੰ शिफ्ट करो राइट साइड, x के dx equal to dt by 3। therefore what is the integral, x cube minus 1 t पुट किया है, तो t raised to power 1 by 3 और ये x क्यूब की बनेगा, x क्यूब की वैल्यू फाइंड करो, t plus 1 नाल x raised to power 2 dx की बनेगा dt by 3। तो सारा क्वेश्चन जो ਅਸੀਂ रिप्लेस करना है विच कोई भी x नजर नहीं आना चाहिए, 1 by 3 कांस्टेंट। सो इस इंटीग्रल ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋल्व करना है, ओपन द ब्रैकेट, 1 by 3 plus 1 is 3 plus 1 is 4 by 3 plus t raised to 1 by 3, ਇਹਦਾ करना इंटीग्रल। फर्स्ट 4 by 3 plus 1 7 by 3 over 7 by 3 plus 1 by 3 plus 1 is 4 by 3 over 4 by 3 plus c। ठीक है, लास्ट स्टेप रिप्लेस करना t ਨੂੰ, t ਦੀ वैल्यू की है x क्यूब माइनस 1। देखो पहला तो 3 कॉमन निकलेगा, बाहर कैंसिल कर दो, सो फर्स्ट टर्म इज 1 by 7 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 7 by 3 प्लस 1 by 4 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 4 by 3 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ਇਹਦੇ ਚ कुछ भी इधर नजर नहीं आ रहा है, किसी की पुट करिए कौन डेरिवेटिव बनेगा, पर एक चीज कॉमन आ रही है, रूट x अंदर आ गया, रूट x माइनस 1। नाउ पुट अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t, रूट x का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट x इज इक्वल टू dt by dx। देखो 1 by 2 रूट x अवेलेबल नहीं है, 2 नहीं हैगा, 1 by रूट x है, so 1 by root x dx is equal to 2 dt। ठीक है, therefore what is the question, 1 by root x minus 1 को पुट किया सी t और बाकी सारा 1 by root x dx मिलके की बन चुका है 2 dt। सो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल बन गया, ठीक है, 2 टाइम्स 1 over t का इंटीग्रल log mod t, 1 over x का इंटीग्रल प्लस c, 2 टाइम्स log mod t की वैल्यू पुट करो, व्हाट इज t, root x minus 1 प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 ऑलमोस्ट सेम टाइप दे है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल 20th करते हैं क्वेश्चन, चेक करो कि ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ नीचे पई है ਇਹਦਾ डेरिवेटिव ਕੀ है, e raised by 2x ਦਾ e raised by 2x into 2, e raised by minus 2x ਦਾ e raised by minus 2x मल्टीप्लाई बाय minus 2i के नाल। ठीक है, कि ਇਹ ਚੀਜ਼ ऊपर पई, चेक करो ध्यान नाल, सिर्फ साढ़े को 2 नहीं है, बाकी सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब डेरिवेटिव च ਇਹ चीज ਨੂੰ कवर किया जा सकता है। सो इस क्वेश्चन की करांगे पुट e raised by 2x plus e raised by minus 2x equal to t। ध्यान रखना न्यूमरेटर ਨੂੰ पुट करके डिनोमिनेटर भी बन जाएगा, पर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव च कवर नहीं होना, क्योंकि डेरिवेटिव ਦੇ ਨਾਲ dx होना चाहिए, ठीक, वो न्यूमरेटर आएगा सिर्फ। सो इस चीज ਨੂੰ पुट करांगे डिनोमिनेटर ਨੂੰ, डेरिवेटिव इज 2 e raised by 2x minus 2 e raised to minus 2x is equal to dt by dx। प्रॉब्लम ये है कि 2 है नहीं अपने को ऊपर क्वेश्चन दे विच, सो 2 कॉमन, इधर आ गया dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके dt by 2। देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स, ऊपर वाली सारी चीज मिलके बन गई dt by 2, 1 by इनको पुट किया t into dt by 2। सो व्हाट इज आंसर, 1 by 2 कांस्टेंट log mod t प्लस c, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, 1 by 2 log mod e raised by 2x plus e raised by minus 2x। सो बड़े आराम से पुट किया डेरिवेटिव कवर हो गया, पर की ਇਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ है डिनोमिनेटर ਦਾ डेरिवेटिव क्या आ रहा है 2 e raised by 2x, सिर्फ इतनी चीज, पर ऊपर तो कुछ हो नहीं है, नाल 1 भी है, ਇਹਦਾ मतलब ये क्वेश्चन ਤਾਂ ਇਦਾਂ होना ही नहीं, फिर ना पुट करके होना है। एक स्टेप ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ करना पड़ेगा, देखो स्पेशल स्टेप है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised by x। ध्यान रखना ਇਹਦੇ इस क्वेश्चन ਦੀ टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਫ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, e raised by x minus e raised by minus x divided by e raised by x plus e raised by minus x dx। ठीक है, सो इस तो बाद बिल्कुल आई चीज सेम, न्यूमरेटर पुट कर दो,
सो नेक्स्ट ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਾਪੀ ਕੁਐਸਚਨ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 32 and 33 क्वेश्चन आर ऑलमोस्ट सेम और बड़े इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट है क्वेश्चन, डायरेक्ट पुट नहीं होने। इस क्वेश्चन की करना पड़ना, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस, एक रैम करना पड़ेगा क्वेश्चन स्टार्टिंग को, देन टेक एलसीएम, sin x ऊपर आ जाएगा, sin x ओवर sin x प्लस cos x। अगर ਅਸੀਂ डिनोमिनेटर ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ तो कोई डेरिवेटिव है नहीं ऊपर, ठीक है। क्रैमिंग वाला स्टेप फिर रखे, डिवाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2। की बेनिफिट इस स्टेप का देखो की करना, नेक्स्ट स्टेप 1/2 जेड़ा ऊपर है 2 sin x, इन्हों सीधा लिखना है sin x प्लस cos x, एक cos x ऐड कर देना है, एक cos x माइनस कर देना। देखो sin x तो बन जाएगा 2 sin x, ठीक है। cos x ऐड किया cos x माइनस करता, एंड डिनोमिनेटर इज सेम sin x प्लस cos x। क्लियर, सेपरेट कर दो क्वेश्चन, 1/2 इंटीग्रल 1 प्लस sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x, ठीक है। फर्स्ट इंटीग्रल 1/2 dx, फर्स्ट इंटीग्रल, सेकंड 1/2 इंटीग्रल ऑफ sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x। देखो फर्स्ट का इंटीग्रल तो सिंपल है, दूसरे वाला से पुट कर लेंगे, पुट करना डिनोमिनेटर नु sin x प्लस cos x नु t, इट्स डेरिवेटिव इज cos x माइनस sin x, नाल लगाओ dx इज इक्वल टू dt। ਅਸੀਂ डायरेक्ट थर्ड स्टेप लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने तो पहले वाला स्टेप, ठीक है। की साडे को cos माइनस sin है, साडे को sin माइनस cos है, टेक नेगेटिव कॉमन, sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू क्या माइनस dt। क्लियर, सो की बनेगा फिर क्वेश्चन, देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स, देखो फर्स्ट वाला आ गया 1/2 dx प्लस इंटीग्रल डिनोमिनेटर में उसे t पुट किया है sin x plus cos x to t, so 1/t into न्यूमरेटर sin minus cos dx की बन चुका है माइनस dt। हुन करांगे इंटीग्रल, हुन बिल्कुल ठीक है चीज, फर्स्ट द इंटीग्रल 1/2x, सेकंड माइनस कॉमन 1/t दा log mod t plus c, so replace the value of t की है sin x plus cos x, so this is the final answer। बिल्कुल सेम 33rd क्वेश्चन इतने करना। नाउ द 34th क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन है, सिर्फ इतना हिंट मिलता है कि जो रूट के अंदर चीज है ना डिफिकल्ट है, ਅਸੀਂ tan x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ secant square x। ਕੀ secant square x ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ secant square x ਤਿਆਰ करना है, डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ cos x ਨਾਲ डिवाइड, cos x ਨਾਲ मल्टीप्लाई, cos x आ गया, ठीक है, रूट tan x डिवाइडेड बाय sin ओवर cos which is again tan x into, देखो cos का रेसिप्रोकल secant square जो साडी रिक्वायरमेंट से ਅਸੀਂ बना ਲਈ, इंटीग्रल ऑफ tan x ओवर रूट tan x, ठीक है, रूट tan x ओवर tan x कैंसिल करने तो बाद tan x की पावर -1/2 into secant square x dx। बिल्कुल ठीक है जी, उन्हें से tan x को पुट कर सकते हैं। नाउ पुट tan x equal to t, its derivative is secant square x dx is equal to dt, therefore integral becomes tan x ਨੂੰ t पुट किया t की पावर 1/2 इंटीग्रल secant square x dx जेड़ा वो की बन चुका है dt। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। पावर रूल अप्लाई करो, -1/2 प्लस 1 इज 1/2 ओवर 1/2 प्लस c, 2 आ गया न्यूमरेटर, t की वैल्यू रिप्लेस करो, t की है tan x, ਉਹਦੀ हाफ पावर मींस √x, √tan x प्लस c। नाउ द 36th क्वेश्चन, x plus 1 into x plus log x whole square by x, डिफरेंट क्वेश्चन है काफी। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ जो पावर के अंदर है भी, जो डिफरेंट नजर आ रही जिन्होंने सॉल्व नहीं कर सकते, हमेशा वो चीज पर टारगेट रखना अपना।
अगर इन्हें पुट करांगे तो डेरिवेटिव 1 + 1/x इदा दा कुछ है किते या बन सकता है। ठीक है, की करना है x + 1/x इन्हां नूं कलेक्ट कर लो, इन्हू रहने दो सेपरेट x + log x का होल स्क्वायर dx। तो सेपरेट करांगे इट इज 1 + 1/x इनटू x + log x का होल स्क्वायर dx। जो सी चाहते सी बन चुका है डेरिवेटिव। सो पुट x + log x = t, its derivative is 1 + 1/x, नाल लगाओ dx = dt। देखो ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ स्टेप लिखते सी पहले डेरिवेटिव आ गया इधर dt/dx, अगले स्टेप्स करते सी क्रॉस मल्टीप्लाई, पर डायरेक्ट ये स्टेप लिखना शुरू करो। dx इधर आ चुका है, देयरफॉर इंटीग्रल इज सारे इनपुट कितना t² और ये सारी चीज मिलके की बन गई dt। तो t² का इंटीग्रल t³/3 + c एंड t की वैल्यू रिप्लेस कर दो x + log x raised to power 3 divided by 3 plus c, which is the final answer। 37 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो डिफरेंट जेड़ा आ रहा है वो एंगल है, साइन दा एंगल बहुत ही डिफिकल्ट नजर आ रहा है। सो ਅਸੀਂ इसे एंगल ਨੂੰ पुट करते हैं और tan इनवर्स x raised to 4 = t। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 plus x² means 8 power into chain rule x for the derivative 4x³ dx = dt। चेक करो केड़ी चीज अवेलेबल नहीं है, x³ dx है 1 और x + 8 भी है, सिर्फ 4 नहीं है। तो 4 नो सी करांगे क्रॉस मल्टीप्लाई = dt/4। therefore integral becomes sin of इस tan इनवर्स नु पुट कीता सी t क्लियर इनटू सारे बाकी सारा मिलके क्या आ गया dt/4। तो क्वेश्चन आ बन गया sin t का इंटीग्रल -cos t + c। t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, व्हाट इज t? t की है tan इनवर्स x raised to power 4। सो ये बन गया अपना लास्ट फाइनल स्टेप। एंड नेक्स्ट एक नोट देखो, ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 7.2 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਡ ਆਫ ਸਬਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਫਸਟ ਟਾਈਪ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ n शुड नॉट = -1। ठीक है, अगर पावर n है और उसे फंक्शन का डेरिवेटिव नाल पिया है, क्लियर, ਅਸੀਂ डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं फंक्शन की पावर इंक्रीज करके डिवाइड बाय दैट थिंग, क्लियर। और अगर n की पावर -1 आ ही जाती है, उसकी सेकंड टाइप है पावर -1 मींस नीचे आ गई, मींस डेरिवेटिव ओवर फंक्शन, आंसर इज लॉग मॉड फंक्शन। ये दो टाइप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जेडी ਅਸੀਂ यूज करनी है बार-बार। और ऐसे एक्सरसाइज हुन मैं यूज करनी शुरू करन लगा। ਅਸੀਂ अपना फर्स्ट क्वेश्चन दोबारा करन लगे हैं। पहला कितना कीता सी फर्स्ट क्वेश्चन मैं एक बार रिवाइज कर दूंगा। पुट कीता सी 1 + x² नु t, डेरिवेटिव बने सी 2x dx = dt। क्वेश्चन की बने सी देयरफॉर इंटीग्रल बिकम्स 1/t। ठीक है, t पुट कीता सी बाकी सारा बन गया dt। सो आंसर इज log mod t + c। t दी वैल्यू रिप्लेस 1 + x² + c। इस तरीके ਨਾਲ ਅਸੀਂ क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, पर ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ दोबारा करना है, टाइप चेंज करके 2x/1 + x²। नोट करो ध्यान नाल कि ना जो टाइप को लगदा नहीं डायरेक्टली इस चीज का डेरिवेटिव ऊपर पिया है 1 + x का डेरिवेटिव होता 2x, डायरेक्ट टाइप बन गई फंक्शन ओदा डेरिवेटिव। आंसर इज log mod फंक्शन प्लस c। नोट करो आंसर मैच कर चुके हैं और बहुत सिंपल चीज है। टाइप अगर याद है डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये तो है ही मैथड जनरली ਇਹਦਾ लगना ही लगना है। ठीक है, पर किसी किसी क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ 50% 60% 70% क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ टाइप्स भी लगती हैं। ठीक है, ਹੁਣ देखो फॉर एग्जांपल लेने कोई ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन ਕੀਤਾ ਸੀ नंबर 10 1/x - √x dx। इस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल √x कॉमन आ रहा है, अंदर आ गया √x - 1 dx। ठीक है, पुट कीता सी
रूट एक्स माइनस वन टी जे याद हो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ अगर ਅਸੀਂ इस क्वेश्चन ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਦਈਏ 1 by 2 root x 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 नोट करो कि कितना 2 ਨਾਲ डिवाइड 2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई इस फंक्शन ਦਾ डेरिवेटिव की है रूट x माइनस 1 ਦਾ इट इज 1 by 2 root x ਇਹਦਾ डेरिवेटिव है ठीक है और वो डेरिवेटिव ऊपर पे है टाइप नंबर 2 फेल आ गई डेरिवेटिव ओवर फंक्शन ठीक है सो इट्स आंसर इज log mod फंक्शन पुट वाला मेथड तो है ही है भी वो तो जनरल है फॉरएवर है विच कोई टाइप लगती है तो साडे स्टेप्स बहुत ही ज्यादा सेव हो जाएंगे इसी का 10th क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 1 over x log x रेज़ पर m देखो पहला ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ log x ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁੱਟ ਕਰੋ t डेरिवेटिव इज 1 over x dx is equal to dt 1 over x है अवेलेबल ना dx भी है क्वेश्चन ये बन गया 1 over log x to t पुट कितना है m पावर dt इंटीग्रल कितना करना है पावर करो नेगेटिव dt नाउ पावर रूल अप्लाई कर दो माइनस m प्लस 1 over माइनस m प्लस 1 प्लस c t नु रिप्लेस कर दो t है log x so log x raised to power minus m plus 1 divided by minus m plus 1 plus c ठीक है एक मेथड का नॉर्मल हो गया दूसरा मेथड देखो log x का डेरिवेटिव की है 1 by x क्लियर है ये चीज इन्हों पे इतना लिख दिए 1 by x over log x raised to power m ठीक है ऐसे डेरिवेटिव तैयार कर ले ऊपर डेरिवेटिव ओवर फंक्शन जेडी टाइप नंबर 2 सी ठीक है वो तां लगदी है कि पावर 1 होवे नीचे पर पावर 1 नहीं है सो इस क्वेश्चन इतना करो 1 over x पावर ऊपर ले लो की बन गया जेडी टाइप नंबर 1 लिखी सी डेरिवेटिव इनटू फंक्शन दी पावर n ठीक है जेड़ा फंक्शन है जिसकी पावर है ਉਹਦਾ डेरिवेटिव ਪਿਆ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀ आंसर लिखਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ फंक्शन दी पावर इंक्रीज करनी है log x की पावर minus m plus 1 over minus m plus 1 plus c ये टाइप लगी डेरिवेटिव इनटू फंक्शन दी पावर n दिस इज डेरिवेटिव दिस इज फंक्शन ठीक है दी पावर n आंसर की सीगा फंक्शन दी पावर इंक्रीज करनी है डिवाइडेड बाय n plus 1 और देखो दोनों आंसर मैच कर रहे ठीक है कितने घट स्टेप लगते हैं अगर सानू टाइप्स लगानी आ जानी है नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 x over e raised पर x स्क्वायर सोचो दे कौन कितना डेरिवेटिव बन सकता है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बनने के चांसेस है सो ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ its derivative is 2x dx is equal to dt 2 अवेलेबल नहीं है so 2 ਨੂੰ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो dt by 2 therefore integral becomes 1 over x स्क्वायर ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ t e raised पर t और बाकी सारा x dx मिलके की बन गया dt by 2 जिन्हों लिखा जा सकता है 1 by 2 कांस्टेंट है e raised पर -2 ठीक है और e raised पर x का इंटीग्रल इज e raised पर x सिर्फ की करना है कोएफिशिएंट ऑफ t दे नाल डिवाइड जरूर करना है ठीक है सो व्हाट इज द फाइनल आंसर -1 by 2 e raised पर माइनस t t दी वैल्यू की है x स्क्वायर सो ये बनेगा जो फाइनल आंसर ठीक है ये तो हो गया नॉर्मल मेथड पुट करके कि ਅਸੀਂ कोई टाइप लगा सकते हैं समथिंग डेरिवेटिव ओवर फंक्शन शायद ਇਹਦੇ टाइप लगन ਦਾ कोई चांस नहीं ठीक है ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਾਇਆ क्वेश्चन की पता लग जाए हां हर क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ टाइप नहीं लगदी ठीक है ਤੁਸੀਂ ट्राई कर सकते हो e ਦੀ ਪਾਵਰ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਇੰਟੀਗਰਲ डेरिवेटिव की है e रेज़ पर x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ 2x पर ਇਹਦਾ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ टाइप लगन ਦਾ ਚਾਂਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ठीक नंबर 25 हाँ जी इस क्वेश्चन कितना कर सकते हैं जो भी tan x आवे ना सोचा करो कि सीक्वेंस कर बना सकते हैं ठीक है सीक्वेंस कर बन रहा है सो फर्स्ट स्टेप इन इधर लिखो इट इज सीक्वेंस कर x डिवाइडेड बाय 1 minus tan x raised to power 2 ठीक है पुट किनु करना चाहिए जो पावर अंदर आ जो डिफिकल्ट नजर आ रहे हैं लेट अस टेक 1 minus tan x equal to t its derivative is minus secant square x dx is equal to dt देखो नेगेटिव नहीं हैगा ऊपर
सो नेगेटिव में शिफ्ट कर दो राइट साइड, secant square x dx is equal to minus dt. Therefore integral becomes 1 by इस चीज में पुट किया सी t, क्या आ गया t square, secant square x dx के बन गया minus dt. बस इस चीज का करो इंटीग्रल. सो 1 by t square means नेगेटिव आ रहेगा फर्स्ट ऑफ ऑल t raised to power minus 2 dt. Power rule, minus 2 plus 1 is minus 1 divided by minus 1 plus c. Positive, reciprocal 1 by t. 1 by t means what is t? 1 minus tan x plus c. ये आ गया आंसर. ठीक है, काफी सारे स्टेप्स लग गए कि साडे माइंड को टाइप आई. इस तक अगर क्वेश्चन सेम ही चल रहा है, ये ना पुट करिए. देखो ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ 1 tan x ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ, tan x secant square ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਸ ਪੂਰੇ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੈ secant square x ਬਣ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਸ. ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦੋ 1 tan x ਦੀ ਪਾਵਰ -2 dx. ठीक है, और चेक करो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, डेरिवेटिव इनटू फंक्शन दी पावर n. फर्स्ट टाइप फंक्शन दी पावर इंक्रीज 1 tan x -2 plus 1 is -1 divided by -1. सो नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, की आंसर आ गया 1 by 1 tan x plus c. देखो सेम ही आंसर आ गया. ठीक है, तो टाइप लगानी आनी चाहिए है. इस क्वेश्चन की चेंजेस आ सकते हैं, नोट करो. मान लो तो 2 पावर नहीं है, नवा क्वेश्चन ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, डेरिवेटिव का हल भी बन सकता है. तो डेरिवेटिव तो माइनस secant square x है, सो माइनस का मल्टीप्लाई अंदर ते बाहर करन तो बाद ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ 1 ਪਾਵਰ. 1 ਪਾਵਰ ਹੋਏਗੀ ਟਾਈਪ ਨੰਬਰ 2, 1 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਹੈ ਟਾਈਪ नंबर 1. तो दिस इज डेरिवेटिव ओवर फंक्शन. उनके आंसर आएगा log mod फंक्शन. ठीक है, चेंजेस ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁੱਟ ਵਾਲੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 7.2 ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ.